السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ ہے ٹیررزم کے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے وہ اس ٹائم اپنے عروج پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اگر دسمبر کے اندر صرف دیکھیں تو دسمبر کے اندر 3 اٹیک ہوئے ہیں۔ پہلا پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر ہوا تھا، دوسرا بنوں کے ایک جو میجر اٹیک ہے یہ جس کو ایک سیویرٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور تیسرا ابھی آج یا آج ہوا ہے شاید، یا کل ہوا تھا، یہ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے۔ وہاں پر بھی ایک گاڑی کو پکڑا گیا تھا جو کہ کافی زیادہ مواد لے کے جا رہا تھا، جو ایکسپلوژن تھا اس کو، تو انہوں نے وہیں پر ہی اپنے آپ کو اڑا دیا تھا۔ تو یہ جو 3 اٹیکس ہیں ان کو کافی سویئر کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد بنوں کو ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو رائز آف ٹیررزم ہے یہ کیوں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم فردر کچھ سجیشنز بھی دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ سب سے پہلے یہ پاکستان کی ایمبیسی ہے کابل کے اندر، جس کے اوپر اٹیک ہوا۔ بہت سے برادر جو کنٹریز ہیں ہمارے، جن میں چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو ایس نے اس چیز کو کنڈیم کیا اور ارج کیا ٹو افغانستان ٹو ناٹ الاؤ دا ٹیررسٹ ٹو اسپائل دا پیس آف نیبرز۔ تو ان کے اوپر کافی مطلب کہ اس ٹائم پریشر ہے۔ ہوا کیا ہے جی کہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی عبید الرحمان نظامی، جو کہ پاکستان کے ہیڈ تھے افغانستان کے اندر، ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ایک ڈرائیور تھا ان کو وہ انجرڈ ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ان کا رسپانس آیا کہ ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے اور ایکشن کرنا چاہیے اگینسٹ دا پرپیٹریٹرز۔ اور ایمبیسڈر اینڈ اور جو پاکستان کے ایمبیسی کے فورن اسپوکس پرسن تھے انہوں نے کہا کہ ہم سارے سیو ہیں، لیکن ہم باہر نہیں نکل رہے اپنی ایمبیسی کے۔ افغانستان کا جو رسپانس تھا وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس اٹیک کو، ٹھیک ہے؟ اور جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس جو واقعہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور جب ہم نے شناخت کر لی پرپیٹریٹرز کی تو پھر ہم ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا پنش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ جو افغانستان کے جو چارج دی افیئرز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ایک ٹیرر ہے، ٹیرر جو اٹیکس ہیں یہ بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے یہ کامن اینیمیز ہیں، ٹھیک ہے؟ The attack has been condemned by the Afghan leadership in strongest possible terms at the highest level. He also informed that the security of Pakistan diplomatic mission has already been beefed up. ہم نے سیکورٹی کو بڑھا دیا ہے and assured that Afghan authorities would leave no stone unturned in bringing the perpetrators dastardly act to the justice۔ مطلب کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو اس ٹائم ریلیشنز ہے اس کے اوپر بھی میں ہوپ فلی بہت جلد ویڈیوز بنانے لگا ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی یہ ان قریب جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں ود چائنا، یو ایس اے، افغانستان اور سعودی عربیہ، سینٹرل ایشین ریپبلکس، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر ہوپ فلی اب میں ویڈیوز بناؤں گا، اور انڈیا، یہ ہمارے کافی ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ اور پاکستان کے جو رشیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو آلریڈی میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اپنے پلے لسٹ میں جا کے اس چینل کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اٹیک ہوا تھا بیسیکلی کنسیڈر یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کلیم کرے گی، لیکن یہ ٹی ٹی پی نے کلیم نہیں کیا، یہ آئی ایس نے کلیم کیا، جو کہ داعش جسے کہا جاتا ہے، جو کہ افغانستان کے اندر القاعدہ اینڈ داعش اور جتنی بھی مطلب کہ یہ تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ آئی ایس جو ہے، آئیسس، اس نے کلیم کیا تھا کہ یہ اٹیک ہم نے کروایا تھا پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر۔ فردر اگر دیکھیں تو بنو اٹیک ہے۔ بنو اٹیک یہ تھا کہ یہ ٹی ٹی پی نے کلیم کیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے کوئی تقریباً 20 کے قریب لوگ تھے، یہ آئے بنو کے اندر، جو سی ٹی ڈی کا آفس تھا وہاں پر، سی ٹی ڈی کا آفس کے اندر، بلکہ یہ آئے نہیں، ان کو یہاں پر اریسٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا، کسی طریقے سے وہاں پر جو آفیسرز تھے ان کو مار کے، ان کو مارا تو خیر نہیں، ان کو نا ان کا جو اسلحہ وغیرہ تھا اس کو لے کے، اور انہوں نے ان کو بندی بنا لیا،
ठीक है। तो इसके बाद फिर जब पाकिस्तान की फोर्सेस को पता चला तो इन्होंने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया इनके खिलाफ। ठीक है। और वो तकरीबन जो 20 लोग थे वो मारे गए वहां पर। एक ये बनों का अटैक था, मतलब कि एक आप ये देखें, न्यूक्लियर पावर एक स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर एक एक मतलब कि सीटीडी का ऑफिस है, उसके अंदर कुछ लोग आते हैं और उनको जाहिर बात है बाहर से कोई ना कोई कुमक मिली होगी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो अंदर से ही सारा कुछ वो कर दें, उनको बाहर से भी कोई ना कोई सपोर्ट होगी। और उसकी बेस पे उन्होंने ये सारा एक जो ढोंग था वो रचाया। द टेरिफाइंग स्टैंड ऑफ इन बन्नू कैंट का एरिया था, where are many as 20 fighters from the Tehreek Taliban Pakistan were hosting a launch party inside the containment counter terrorism facility। पर ये बाद में एक वो हुआ है, ऑपरेशन किया गया और उसके बाद इनको मार दिया गया। सिमिलरली इस्लामाबाद के अंदर भी एक जो अटैक हुआ वो भी अभी तकरीबन एक गाड़ी थी, वो जो कि उसके अंदर काफ़ी मवाद था, एक एक्सप्लोजन वाला, जो कि जा रही थी इस्लामाबाद की तरफ। और जब उसको रोका गया तो उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया। तो उसके अंदर एक जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल था, वो मारा गया और एक जख्मी है। अब देखा जाए तो ये राइज इन अटैक्स ये क्यों है आफ्टर द यूएस विड्रॉल, अगर कंसीडर किया जाए तो यूएन के मुताबिक IS fighters don't number more than 2000. However, it has carried out 72 terror attacks in the first 4 months of 2021. Institute of Conflict and Security Studies, a Pakistani watchdog, approximately उसके मुताबिक 294 terrorist attacks occurred in 2021, about 56 increased compared to the previous years। अब ये देख लें कि ये जो हमारी ये जो दो रिपोर्ट्स हैं ये प्रॉपर बता रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स हैं ये होना ज़्यादा हो गए हैं। और अगर इसको देखा जाए तो ये जब से यूएस इधर से अफगानिस्तान से निकला है उसके बाद से ही ये होने स्टार्ट हो गई हैं। अब इसकी दो से तीन वजूहात हो सकती हैं। या तो मतलब कि ना यूएस खुद करवा रहा है कि वो चाहता है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर अपनी दोबारा इंगेजमेंट रखे। उसने अभी ये जो टेरर अटैक्स हुए हैं उसके बाद ये कहा भी है पाकिस्तान को कि अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर ड्रोन्स वगैरह के साथ आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, या तो फिर जो तालिबान हैं वो खुद सेव पैसेज दे रहे हैं उन्हें, और दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप हमें तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या होगा कि हम सुकून कहीं पर भी नहीं होने देंगे। आज पाकिस्तान है, कल यहाँ से चाइना वाली साइड पे जाएंगे, कार्स में जाएंगे, वहां से वो मूव करते करते जिस तरह पहले गए थे 9/11 का हो गया था, इसी तरह और भी कोई अटैक्स हो सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल रीजंस हैं अगर उनको कंसीडर किया जाता है तो। यूएनएससी। ओके जी। फर्दर अगर देखें तो ये वाई इन राइज इन अटैक्स इन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिज्म है ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न आपको यूएनएससी की एक रिपोर्ट है उसके अंदर से मिल सकती है। ये 30th रिपोर्ट थी ऑफ एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम। इन्होंने सेट की अंडर यूएनएससी एज रेजोल्यूशन 1526 एंड 2253। इन्होंने क्या कहा है जी कि अल कायदा एंड आईएस threats remains high in conflict hit regions and the neighboring countries, though both of these terrorist groups could attempt to strike in non-conflict areas। मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि जो टेररिज्म के चांसेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो नॉन कन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी उनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखा जाए तो पंजाब के अंदर सिंस 2021 जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए हैं 3 अटैक हुए हैं। ये हैं नॉन कन्फ्लिक्ट एरियाज। ठीक है। और अगर कल का आप लगाते हैं तो 4 हो जाएंगे। ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो केपी के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है। तो ये सारे क्यों बढ़ रहे हैं, ये क्योंकि इन दोनों ने आपस में अलायंस जनरेट कर लिया है। सिमिलरली अगर आप फर्दर देखें
तो both groups can attempt to strike in regions non-conflict areas. अलकायदा का जो जवाहिरी साहब था वो वहां पर सॉरी जवाहिरी साहब कह रहा हूँ, अलकायदा के जो चीफ थे जवाहिरी, ये वहां पर काफी घूम फिर रहे थे। ठीक है, अराउंड 4,000 ग्रुप फॉरेन फाइटर्स, टीटीपी presents a great threat to the region. IS seeks expansion in region beyond Afghanistan for realization of its caliphate project. मतलब कि ये इनका जो एजेंडा है, ये क्या है, वही कैलिफेट वाला। और जो टीटीपी हैं, उन्होंने तो पिछले दिनों उनके जो वली मोहम्मद मसूद था, या उनका जो एक लीडर था, उसने पिछले दिनों कहा भी था कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे लिए अफगानिस्तान के अंदर रहना दो बार किया गया, तो फिर हम पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और किया भी जा रहा है। टारगेट किलिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, मोर देन 107 से ज़्यादा जो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वार ऑन टेररिज्म, इसमें आफ्टर more than 107 police officials laid down their lives in war against terrorism in the first 11 months of the 2022. अब इसमें यह है कि करना क्या चाहिए, मतलब कि अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको डिप्लोमेसी को और उसके अंदर कैरेट एंड स्टिक डिप्लोमेसी, मतलब कि आप इसके साथ आप उनको इंसेंटिव्स वगैरह दे के फिर भी कुछ कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ, या फिर आप एक स्ट्रिक हैंड जो होता है उसको यूज करते हुए आप उनके साथ एक विद एन आयरन हैंड आप टीटीपी को रोक सकते हैं। सिमिलरली अफगानिस्तान गवर्नमेंट मस्ट बी अप्रोच टू नीडफुल मेजर्स, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए, और उसको लाजमी मतलब कि ना एक हेल्प करनी चाहिए, जिस तरह उसने अपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उनमें उन्होंने कहा भी हुआ है कि हम अपनी ज़मीन को किसी जो नेबरिंग कंट्री है उसके लिए यूज़ नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अब उनसे पूछा जाए कि वो क्यों यूज़ किए जा रहे हैं टीटीपी वाले। उसके बाद जो पाकिस्तान को करना चाहिए वो नेक्स्ट एक्शन प्लान 2.0, ये एक नीड ऑफ द आवर है। अगर फॉर एग्जांपल ये अभी नहीं होता तो फिर सिचुएशन विल बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। उसके बाद ये ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल्स। अब कोई अटैक होता है तो उस वक्त ना जो फेडरेशन है वो प्रोविंसेस को कहने लग जाती है कि आप कुछ नहीं कर रहे, और ये कहने लग जाते हैं फेडरेशन को कि आप हमें बजट नहीं दे रहे, आप हमारे साथ यूं करें, आप हमारे साथ यूं करें। तो ये एक जो काम है जो टेररिज्म है, इसको रोकने के लिए इन दोनों को इन दोनों दलों को एक होना पड़ेगा, फिर ही जाके कुछ होगा। तो ये जो इंटरनल डिवीजन है इसको भी खत्म होना चाहिए। विदेशवर जी, पाकिस्तान के अंदर अगर इसको कंक्लूड करें तो टेररिज्म इज ऑन द राइज। उसकी जो तीन मैनिफेस्टेशन है, पहली पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, दूसरा बन्नू के अंदर हुआ, तीसरा इस्लामाबाद के अंदर हुआ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अलकायदा और टीटीपी, उन्होंने, और उसके अलावा जो ईटीआईएम है, इन्होंने आपस में एक अलायंस जनरेट कर दिया, और ये क्या कर रहे हैं, जो नॉन कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर ये एक जो सिचुएशन है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान को अप्रोच करना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डील करे, अपने जो अब ज़मीन है उसको यूज़ ना होने दे। उसके बाद टीटीपी के साथ जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसके साथ काम किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है, पाकिस्तान को नेशनल एक्शन प्लान 2.0, इसको लॉन्च करना चाहिए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को जो फेडरेशन और प्रोविंसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ लेके चलना चाहिए। आप अगर फॉर एग्जांपल टेररिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके अंदर इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो विद दिस वर्ड जी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में वो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।